Yes, today's topic is flow of control. Introduction. We see a bus carrying the children to school. There is only one way to reach the school. The driver has no choice but to follow the road one milestone after another to reach the school. We learned in chapter 5 that this is the concept of sequence, where Python executes one statement after another from beginning to the end of the program. These are the kind of programs we have been writing till now. So till now you were following, like here school bus has to reach the school. Now there is only one method to solve it, one path is there. So this is a sequence method. So one stop, then second stop, then third stop, and finally the bus will reach the school. So in flow of control you have to learn that how to solve the problem. Is it sequence wise or conditional based or iterative? So that we have to understand first. Let us see what Guido van Rossum has written. Don't you hate code that's not properly indented? Making it indenting part of the syntax guarantees that all code is properly indented. Suppose this is not properly indented. Indented means this space is equal. Like in this paragraph, you can see just I in is starting here and under I S is there. So it is properly indented. Now, if it is not indented, like this quote is not indented. So, suppose it is not indented, then in Python it will show error. So, try to write the syntax which is properly indented. Now, in this chapter, we will do flow of control, introduction, selection, that is if, indentation, repetition, that is iterative statements, break and continue statements, and last topic is your nested loop. Let us consider a program 6.1 that executes in sequence, that is, statements are executed in an order in which they are written. The order of execution of the statements in a program is known as flow of control. So, what is flow of control? If they ask you, the order of execution of the statements in a program is known as flow of control. The flow of control can be implemented using control structures. Python supports two types of control structures, selection and repetition. Now this is very important. That is selection statements. We will start today. If statement, it is also called conditional statement. And repetition, which is also called iterative statements, in which for and while will be there. So Python to print the difference of two numbers. Now this is a sequence one where you have to take the two numbers from the user and you will calculate the difference and you will print it. So this is the old one, sequence. Now today we are going to start selection. Now this is very important. Selection, in bracket you write conditional statements. Now suppose we have rupees 10 to buy a pen. On visiting the stationery shop, there are a variety of pens priced at rupees 10 each. Here we have to decide which pen to buy. Similarly, when we use the direction services of a digital map to reach from one place to another, we notice that sometimes it shows more than one path, like the least crowded path, shortest distance path, etc. We decide the path as per our priority. So Google Map you all have seen, when we are traveling, it will show you multiple paths. Suppose to reach a place, it is showing you two paths. One is least crowded path, but it is long path, and the second one is shortest distance path, but maybe it is crowdy. Now which path you want to take to reach your destination? You want to take the least crowded path which is longer, or you want to take the shortest distance path which is crowded? So that decision you have to make. We decide the path as per our priority. A decision involves selecting from one of the two or more possible options.
It can be two option or more than that. In programming, this concept of decision making or selection is implemented with the help of if else statement. So here you will see, we will start our program. We will take, suppose two inputs you are taking, num1 and num2. Is num1 greater than num2? Now this is a decision box which has two output, yes and no. If num1 is greater, yes, then the difference we are calculating num1 minus num2 and we are printing the difference. But if it is no, that means num2 is greater, then we will find the difference equals to num2 minus num1 and then we will print the difference and we will stop. So this flow chart will explain you everything, that when to take the decision, when to use if. In question paper, all the questions will be given. It will not be mentioned that use if here or use for here. So after reading the question, you have to understand. Suppose the question is calculate the interest. So directly you will calculate, or find the difference. So directly you are finding the difference. But if the question is find the difference where a smaller number is subtracted from a bigger number, that time you have to check it that which is the smaller number and then you have to subtract the smaller from a bigger number. So there you have to use if statement. Now suppose we want to display the positive difference of the two numbers num1 and num2 given at figure program 6.1. For that we need to modify our approach. Look at the flowchart shown in figure 6.2, just now which one we have discussed, that subtracts the smaller number from a bigger number so that we always get a positive difference. This selection is based upon the values that are input from the two numbers num1 and num2. So you will ask the user to enter num1 and num2. Using if, you will check the condition which is smaller and then you will subtract the smaller number from the bigger number. In the following example, if the age entered by the user is greater than 18, then print that the user is eligible to vote. If the condition is true, then the indented statements are executed. Now you will see indentation means when a block starts of if with a colon, then after that the steps of if, that is the block of if, is indented. Indented means the space is left before print. This is the indented block of if. So while writing in copy also, whenever you are starting any block of if, for, else, while, then you will leave some space here and then you will write print. Here. Okay. So the indentation implies that its execution is dependent on the condition. If the condition is true, then only the indented block will be executed. There is no limit on the number of statements that can appear as a block under the if statement. So if statement, here single line is there. It can be multiple lines also. Like here you can see if age is greater than equals to 18, print eligible to vote. Single line is there. It can be more than one line also. Now example, age, int input, enter your age. If age is greater than equals to 18, now you can see this colon. Now the block of if will start. Print eligible to vote. So variant of if statement called if else statement allows us to write two alternative paths and the control condition determines which path gets executed. In this program you have seen only one if is used. Now you will see with if condition is there and if that condition is false, we will use else statement. The syntax for if else statement is as follows. If condition is true, then statement 1 will be executed. Else, colon, now again a block is there of else. If the above condition is false, then this else block will be executed.
Let us now modify the example on voting with the condition that if the age entered by the user is greater than 18, then to display that the user is eligible to vote, otherwise display that the user is not eligible to vote. ठीक है, दो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में. अगर ट्रू है, एज अगर उसका ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18 है, इट विल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन प्रिंट एलिजिबल टू वोट. एल्स अगर नहीं है, सपोज 18 एज उसका 18 से कम है, then it will display not eligible to vote. Now let us use the same concept to modify program this so that it always gives a positive difference. So ये already हमने अभी flowchart में देख ही लिया है कि उसमें कैसे करके उन्होंने modify किया है. Many a times there are situations that require multiple conditions to be checked and it may lead to many alternatives. In such cases, we can change the condition using if elif. अभी तक हम लोगों ने if else किया था. अब एक नया चीज आ गया elif. elif का मतलब है कि else के बाद अगर फिर से कोई if लगा रहे हो, उसको शॉर्ट में हम elif लिख सकते हैं. ठीक है, तो if else, if की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, if elif. अब इसका प्रोग्राम देखते हैं. प्रोग्राम टू प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. तो ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा ही है, जिसमें दो नंबर को हमने यूजर से लिया. उसके बाद हमने चेक किया अगर num1 बड़ा है num2 से तो डिफरेंस num1 माइनस num2, एल्स डिफरेंस num2 माइनस num1. जो फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली था उसको हमने अभी प्रोग्राम में कन्वर्ट किया. The syntax for a selection statement using elif is as below. If condition statement, elif condition statement, elif condition statement and so on. जितने conditions क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, सपोज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है कि तुम ग्रेड को प्रिंट करो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड A प्लस डालो, अगर 80 से 80 to 90 है तो A डालो, अगर 70 to 80 है तो B प्लस डालो. तो बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं तुमको. तब हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ करके पहला कंडीशन लगा के जो पहला कंडीशन ट्रू होने पे होगा उसको लिखेंगे, फिर एलिफ करके दूसरा कंडीशन लगा के हम उसके स्टेटमेंट्स इसको लिखते जाएंगे. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तीन कंडीशन है. तीन कंडीशन के लिए क्या करेंगे, नंबर यूजर से ले लेंगे. इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव. एलिफ, ठीक है, जो एल्स इफ होता है वही. एल्स मतलब ऊपर का कंडीशन फॉल्स है, इसके लिए एल्स में आते हैं. और एलिफ का मतलब है कि फॉल्स है और अभी हम और एक कंडीशन को चेक करेंगे जो कि नंबर अगर लेस देन जीरो हुआ तो फिर हम प्रिंट करेंगे नंबर इज नेगेटिव. एल्स का मतलब है जब ऊपर के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज जीरो. तीन कंडीशन में हम ऐसे प्रोग्राम को लिखेंगे. डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग. सिग्नल, एंटर द कलर. इफ सिग्नल इक्वल्स टू स्मॉल रेड और सिग्नल इक्वल्स टू कैपिटल रेड, colon. Now with or we are checking multiple conditions here. Print stop. Elif, signal equals to small in small letter orange or capital, then it is printing be slow. Elif, signal equals to green or capital green, print go. Here three conditions you have checked, but in each condition you have checked two conditions. Here two conditions, when both are true then only it will execute. Sorry, or means when any one is true, any one or both are true it can be. और का मतलब होता है कि कोई भी एक ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट करेगा. अगर यहाँ पे और की जगह पे एंड लिखते तो जब दोनों ट्रू होगा तभी उसको एग्जीक्यूट करेगा. नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड. अगर क्वेश्चन पेपर में 10 कंडीशन चेक करने के लिए बोलेंगे तो फर्स्ट वाले को इफ से लिखना है, बाकी या तो पूरे 9 कंडीशंस को एलिफ करके लिख सकते हो या फिर लास्ट वाले को अगर एल्स में डालना है तो 8 को एलिफ में डाल के लास्ट वाला जो रहेगा उसको एल्स में डाल सकते.
सकते हो। नॉर्मली हम जब प्रोग्राम दिया रहता है तो फर्स्ट को इफ से लिखते हैं, बाकी सारे को हम एलिफ से लिखते हैं। If the first condition is false, then the next condition is checked, and so on. If one of the condition is true, then the corresponding indented block executes and the if statement terminates. If statement का काम क्या है? जो भी सही होगा, सपोज मैंने 10 कंडीशन चेक किए, सेकेंड सही है तो सेकेंड को एग्जीक्यूट करके वो इफ के पूरे इफ के बाहर आ जाएगा, बाकी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। Let us write a program to create a simple calculator to perform basic arithmetic operations on two numbers. Already हम लोग ये if use करके कर चुके हैं, जिसमें accept two numbers from the user, ask user to input any of the operator, same method से हमने किया है, एक operator लिया, and error message is displayed if the user enters anything else. अच्छा, ये हमने नहीं किया था कि इन ऑपरेटर्स के अलावा अगर यूज़र कुछ और ऑपरेटर डाल देता है तो फिर उसमें एक एरर मैसेज आ जाएगा कि सॉरी यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर। डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ ऑपरेटर माइनस, तो यहाँ पे फिर से एक इफ लगेगा। ठीक है। डिस्प्ले अ मैसेज प्लीज एंटर अ वैल्यू अदर देन 0 इफ द यूजर एंटर्स द सेकेंड नंबर एज 0 एंड ऑपरेटर स्लैश इज एंटर्ड। अब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको इस बार के पेपर में। ठीक है। हाँ बोलो मैम, आप ऑपरेटर ये 4 पॉइंट समझा देंगे? हाँ, ये 4 पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन है जिसमें 4 चीजें तुमसे बोले गए हैं जो तुमको आंसर लिखते समय इन 4 पॉइंट्स को याद रख के तुमको आंसर लिखना है। इसमें बोला है कि तुम एक प्रोग्राम लिखो। जैसे देखो क्वेश्चन पेपर में सारे केस स्टडीज है ऑलमोस्ट, तो केस स्टडी का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन तुमको एक स्टोरी फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि तुमको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। अब उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में तुमको क्या क्या करना है। पहला चीज एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, तो इसको हम इंट इनपुट करके एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज हमने n1 में डाला, n2 इक्वल्स टू इंट इनपुट करके एंटर द सेकेंड नंबर, ये हो गया। सेकेंड क्या है? आस्क यूजर टू एंटर एनी ऑफ द ऑपरेटर। अब हमने ऑपरेटर लिया यूजर से, इंट इनपुट एंटर द ऑपरेटर, सपोज ओपी करके हमने लिया। अब इन्होंने बोला क्या है कि अगर इन ऑपरेटर्स के जगह पे उसने कुछ और डाला तो एरर मैसेज आएगा। तो तुम इफ करके चेक कर लोगे कि अगर ये ऑपरेटर्स नहीं है तो एक एरर मैसेज आएगा, सॉरी यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग ऑपरेटर। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि खाली पॉजिटिव डिफरेंस दिखाना है। हम अगर खाली n1 माइनस n2 लिख के रख देंगे, अगर n1 छोटा हुआ तो नेगेटिव डिफरेंस आएगा। लास्ट वाला क्या है कि अगर सेकेंड नंबर यूजर, हम ये प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं? किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं, मे बी अ चाइल्ड, मे बी सम अदर यूजर। Now if the user enters 0 as second number, num2 को अगर वो 0 कर देगा तो क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 0 से तो इनफाइनाइट लूपिंग हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर num2 हमारा n2 0 है और ऑपरेटर स्लैश है तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इस केस में हमको क्या करना है कि एक मैसेज दिखाना है कि सेकेंड नंबर 0 के अलावा कुछ और डालो, ये मैसेज दिखाना है। अब इसका प्रोग्राम यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा और तुमको ये प्रोग्राम आंसर कॉपी में लिखना है। अब इसको समझ के लिखना है। सबसे पहले हमने हैश करके क्या लिखा, जो तुमको क्वेश्चन दिया गया है, प्रोग्राम टू क्रिएट अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। तुम अपने लैंग्वेज में लिखोगे। यहाँ पे लिखा है कि एक प्रोग्राम है जो 4 फंक्शन का कैलकुलेटर बना रहा है, एक कैलकुलेटर बना रहा है जो 4 ऑपरेशन कर रहा है। पहला क्या है, रिजल्ट। यहाँ पे इन्होंने पहले एक रिजल्ट वेरिएबल को लिया है, इक्वल्स टू 0 कर लिया है। ठीक है। फिर दूसरे में उन्होंने क्या किया, 2 वैल्यूज लिए यूजर से, वो भी डेसिमल वैल्यूज लिए, फ्लोट वैल्यूज लिए। तो val1 इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू 1, val2 इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू 2।
एक ऑपरेटर लिया यूजर से इनपुट, एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर प्लस माइनस स्टार स्लैश, स्टार इनटू के लिए होता है प्रोडक्ट के लिए, और स्लैश डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे। इफ ओपी इज इक्वल टू प्लस, अगर ऑपरेटर प्लस साइन है तो रिजल्ट क्या होगा, वैल1 प्लस वैल2 दोनों को प्लस कर देंगे। पिछले क्लास में हमने x और y दो वेरिएबल लिया था जिसमें हम प्लस करके सीधे यहीं पे हम प्रिंट करा रहे थे। इन्होंने एक वेरिएबल में अभी स्टोर किया है और लास्ट में प्रिंट कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में उन्होंने एडिशन करके वैल1 प्लस वैल2 स्टोर कर दिया। एलिफ ऑपरेटर अगर माइनस हुआ तो फिर इन्होंने यहाँ पे चेक किया, फिर से देखो एलिफ के अंदर एक इफ आ गया, क्यों, क्योंकि अगर ऑपरेटर माइनस होगा तो उसमें बोला है क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ा है तो तुमको उसका जो डिफरेंस है उसमें वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 करना है। एल्स अगर वैल्यू 2 बड़ा है तो उसमें हो जाएगा वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। इसको मैं अलग वेरिएबल से दिखा दूंगी, तुम इस मेथड से भी कर सकते हो, तुमको जो इजी लगे वेरिएबल्स का नाम तुम चेंज भी कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट के लिए चाहिए इनटू के लिए तो फिर स्टार होगा, अगर डिवाइड करना है तो उसमें चेक करोगे कि इफ वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0, डिवाइड करने से पहले तुमको चेक करना है। अगर यूजर ने गलती से वैल्यू 2 को 0 डाल दिया तो एक प्रिंट मैसेज आ जाएगा, एरर डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ये एरर आ जाएगा। एल्स मतलब अगर 0 नहीं है तो रिजल्ट में वैल्यू 1 स्लैश वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसको जब तुम रन कराओगे, अच्छा एल्स प्रिंट रॉन्ग इनपुट, उन्होंने क्या दिया था कि ये 4 ऑपरेटर की जगह पे वो कुछ और ऑपरेटर डाल देगा तो एक एरर मैसेज आ जाएगा, रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे एल्स में ये किसका एल्स है, बाहर वाले इफ का एल्स। तो प्रिंट रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। लास्ट में हमको क्या करना है, जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रिंट हो जा रहा है लास्ट में, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट इज रिजल्ट करके ये रिजल्ट प्रिंट हो जा रहा है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको यहाँ से ले सकते हैं, लेके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सीधे हमने पिछले प्रोग्राम में टाइप किया ही हुआ था। तुम इसको एक काम करना, एज अ होमवर्क कर लो। इस प्रोग्राम को तुम आइडियली में या पाइड्रॉइड 3 मोबाइल में टाइप करके देखो कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट ऐसे आएगा, एंटर वैल्यू 1 तो वैल्यू 1 डालोगे, एंटर वैल्यू 2 डालोगे, एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर, इसमें से कोई भी एक ऑपरेटर डालोगे। द रिजल्ट इज, उसको डिवाइड करके जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट को शो करो। आगे समझ में? तो इसको कैलकुलेटर तो हम पहले बनाए थे, हमने दूसरे मेथड से बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन में 4 फंक्शन बोला हुआ है, तो इन 4 फंक्शन के हिसाब से तुमको अब ये प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा। In the program for the operators minus and slash there exists an if-else condition। तुमने अभी प्रोग्राम में क्या देखा कि अगर ऑपरेटर माइनस है या फिर ऑपरेटर स्लैश है तो क्या हो रहा है, उसके अंदर हमने अलग से if-else यूज किया है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हारे सपोज मेन 4 कंडीशंस दिए हैं, सपोज कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है जिसमें 4 कंडीशंस है और उस कंडीशन के अलावा भी अंदर कंडीशंस और भी दिए हुए हैं। सपोज तुम्हारा एक केस स्टडी दिया हुआ है कि तुम 10 रुपीज़ लेके मार्केट में गए और फिर पेन खरीदने के लिए तुमने पहले शॉपकीपर से पूछा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सपोज पहला ऑप्शन है कि पेन जो है वो रेड कलर का होना चाहिए और ऊपर से रेड कलर का होना चाहिए, लेकिन लिखते समय इंक उसका ब्लू कलर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि पेन ऊपर से ब्लैक कलर का होना चाहिए और उसका जो इंक है वो रेड कलर का होना चाहिए, लेकिन उसका ब्रांड जो है वो यही पर्टिकुलर एक ब्रांड भी दे दिया गया है, और नहीं तो एरर मैसेज शो करो।
तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4 करके मेनू दिखा सकते हैं, या फिर इफ़ करके हम कंडीशंस को और करके, अगर सारे कंडीशंस को सही करना है तो एंड करके लिखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि रेड कलर का पेन है और ब्लू लिख रहा है, तो दोनों कंडीशन को सही करने के लिए हम बीच में एंड लगाएंगे। ठीक है, उसको मैं दिखा दूंगी, पहले इसको हो जाने दो फिर उसको मैं दिखा देती हूँ। अब ये हो गया। नेक्स्ट इज इंडेंटेशन। अभी जो हमने इफ के बाद, एल्स के बाद कोलन लिख के नीचे जो हमने स्पेस छोड़ के प्रोग्राम का ब्लॉक लिखा, उसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं। In most programming languages, the statements within a block are put inside curly braces. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग कर्ली ब्रेस में डालते थे, लेकिन पाइथन में हम कर्ली ब्रेस को यूज नहीं करते। However, Python uses indentation for block as well as for nested block structures. जैसे ब्लॉक बनता है उसका मतलब वो पर्टिकुलर उस इफ के लिए, उस फॉर के लिए, उस एल्स का वो ब्लॉक है, तो खाली उसी के लिए वो काम करेगा। Leading white spaces and tabs at the beginning of a statement is called indentation. जो आगे के white space होते हैं जब ब्लॉक को लिखते हो, जैसे अभी तुमने ब्लॉक को लिखा, जैसे if का ब्लॉक लिखा, तो if का ब्लॉक का मतलब है ये जो प्रिंट है ये if का ब्लॉक है। if में कंडीशन डाला, कोलन डाला, उसके बाद तुमने if का ब्लॉक लिखा है, तो ये जो स्पेस छोड़ रहे हो मीन्स इफ के नीचे ये जो स्पेस तुमने छोड़ा है इसको क्या बोलते हैं? इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। ये जो स्पेस छोड़ रहे हो प्रिंट लिखने से पहले, इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग वाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड। अगर पूछा जाएगा कि इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, ब्लॉक बनाते समय हम इंडेंटेशन करते हैं, और जो लीडिंग वाइट स्पेस होता है बिगनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट में, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। इन पाइथन द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट्स स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है। The interpreter checks indentation levels very strictly and throws up syntax errors if indentation is not correct. Normally क्या होता है, इस indentation में जिन लोग mistake करते हैं वहाँ पे error message आ जाता है। It is a common practice to use a single tab for each level of indentation. अब ये लेवल ऑफ इंडेंटेशन मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के, जब हम लोग नेस्टेड करेंगे तब देखोगे कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, तो उसमें क्या है नेक्स्ट लेवल। जैसे एक टैब कर रहे हैं तो फर्स्ट इंडेंटेशन के लिए कर रहे हैं, 2 बार टैब दबा रहे हैं तो 2 इंडेंटेशन हो जा रहा है। इन द प्रोग्राम 6.4 the if else statement has 2 blocks of statements and the statements in each block are indented with the same amount of spaces और tabs। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको कि if का ब्लॉक जो है वो यहाँ प्रिंट से शुरू हो रहा है, और if के नीचे else होता है हमेशा। ठीक है, if का जो else रहेगा वो if के नीचे होगा। इसके बाद हम लोग for यूज़ करेंगे, for का else जो रहेगा वो for के नीचे रहेगा। तो if का else जो रहेगा वो if के नीचे, और else का जो ब्लॉक रहेगा वो वैसे ही एक टैब छोड़ के वो ब्लॉक बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? लार्जर ऑफ 2 प्री-स्पेसिफाइड नंबर्स, 2 नंबर्स दिए हैं 5 और 6, और उसमें से लार्जर निकालना है। लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर, ये सब एग्जाम के कॉपी क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही। कुछ क्वेश्चंस हैं विच यू नो दैट इट विल कम इन एग्जाम, लाइक लार्जर नंबर और लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers, average of 3 numbers, sum of the number as well, then afterwards we will do factorial, Fibonacci, वो सब रहता ही है क्वेश्चन पेपर में। ये वाला क्वेश्चन इफ का लार्जर ऑफ 2 number रहेगा ही। Now repetition, for this we will use for, so I am not explaining now because this is our next topic. Next Monday we will do repetition. Today we have to complete for only, if only, that is conditional statements. So I will explain you today conditional statements in program. So let us start with the conditional statements. Now how many programs you can frame here?
कितने क्वेश्चंस बना सकते हो कंडीशनल के, ठीक है। इसमें कंडीशनल के हम प्रैक्टिकल लिस्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स में हमने 11th का जो लिस्ट है प्रैक्टिकल लिस्ट, उसमें हमने देखा था लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स क्लास 11th। Okay, now here you can see the first question is to find a number is positive or negative. So if you will use, next question is write a program. VAP meaning is write a program to find number is even or odd. So even or odd means you will divide it by 2. If it is divisible then even, if it is not divisible then odd. Find elder person in आउट ऑफ 2 पर्सन, ठीक है। 2 लोगों में बड़ा कौन है, तो एज पूछोगे, जिसका एज ज्यादा है तो इसमें भी एक इफ लगेगा। लीप ईयर और नॉट, लीप ईयर में भी हम इफ लगा के चेक करेंगे, ठीक है, कि वो लीप ईयर है कि नहीं। एज इज ग्रेटर देन 18 कैन वोट और नॉट, इसमें भी इफ लगा के। तो ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं तुमको, इसमें सब में क्या हो रहा है, इफ लग रहा है। तो इफ के क्वेश्चंस ऐसे ही तुमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि कहाँ इफ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अगर एरिया और पेरीमीटर आ जाता है तो सीधे हम एरिया और पेरीमीटर में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख के हम कैलकुलेट करते हैं सीधे। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिख रहा है कि कंडीशन से कोई फॉर्मूला नहीं है। पिछला जो मैंने तुमको लिस्ट दिया था उसमें क्या था, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, perimeter of a square, of a ground, how much fencing wire is required, what is the cost of fencing, painting a wall, या फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, या इनकम टैक्स नहीं, सपोज bonus, you have to give a bonus or you have to subtract a tax from a rate so that you can find the net. So all these things what we were doing, simply formula we were writing and we were calculating. Now we will start with if. तो अब हम लोग if यूज करेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, एक n लेते हैं यूजर से, सपोज int करके हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने int इनपुट एंटर अ नंबर। क्वेश्चन में आ गया है कि डिस्प्ले वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर तुमने यूजर से लिया एंड डिस्प्ले नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। तो तुमने यूजर से एक नंबर लिया, कैसे लेते हैं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, यूजर से ले लिया। लेने के बाद इफ करके हम चेक करेंगे। हाँ मैम, क्या एनाकोंडा है कि जुपिटर है मैम? एनाकोंडा के अंदर जुपिटर और स्पाइडर दोनों होते हैं। तुम एनाकोंडा को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद यहाँ पे जुपिटर सर्च करोगे, तो ये एक्चुअली जुपिटर एनाकोंडा का जुपिटर है, ठीक है। ये एनाकोंडा का जुपिटर है। तुमको एनाकोंडा का स्पाइडर अगर करना है तो उसके लिए तुम, ये दोनों एनाकोंडा के अंदर ही है, तुमको खाली एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है। अगर तुमको जुपिटर यूज करना है तो अभी जो मैं यूज कर रही हूँ ये जुपिटर यूज कर रही हूँ। जुपिटर में क्या होता है कि आउटपुट जो होता है वो इसी के नीचे आउटपुट आ जाता है, और स्पाइडर में क्या होता है, इस फ्रेम में तुम टाइप करोगे लेफ्ट हैंड वाले फ्रेम में, और राइट हैंड वाले फ्रेम में यहाँ पे तुमको वो आउटपुट दिखाएगा प्रोग्राम्स के लिए। बाकी इंटरैक्टिव में तो डायरेक्टली हो जाता है जैसे आईडीएलई में होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी स्पाइडर नहीं यूज कर रही हूँ, मैं अभी तुमको जुपिटर में ही दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से वो बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे कि n इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं n, फिर डबल कोट्स में इज पॉजिटिव नंबर। अब इसके एल्स में हम क्या लिख रहे हैं,
एल्स मतलब अगर वो 0 से बड़ा नहीं है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा, हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 के लिए तो हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो जब हम 0 के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली में एलिफ आना चाहिए, तो यहाँ पे एलिफ आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, लेस देन, n इज लेस देन 0। तो इस केस में ये प्रिंट करेगा कि n इज नेगेटिव, so it is printing n is negative. And if you want to print 0, in the question it was not asked, so no need to display 0. So I am printing only positive and negative. Now when you will execute it, it is asking for a number. If you are giving a positive number, it will show it is positive. And if you are executing a negative number minus कोई भी negative number, it is showing it is a negative number. Clear? Now next question is greater of two numbers. So two numbers you have to ask the user to enter. Greater of two numbers, a greater number. Now two number you are asking user to enter. Enter the first number, enter the second number. And then using if you will check it. So first n1 I am taking or n I am taking, enter the first number, and one more variable I am using here. Suppose the variable is m, any variable you can use here. Enter the second number and you are checking using if n is greater than m, then it will print n is greater than m. Print value of n I am writing here in double quotes is greater than comma m, is greater than m. Else. Now the same thing I am displaying here, but just the opposite, that is, yeah, either you can write n is smaller or you can write m is greater than n. So I am copying it from here and I am writing here m is greater than n. Now when you will execute it, it will ask you two numbers. Enter the first number. First number is 7. Second number is suppose 12 or 23. Now enter, it is printing 23 is greater than 7. So here you can see the second number is greater than the first number. And if again I am executing it and first number I am giving a bigger number and second number a smaller number, then also it is showing 87 is greater than 6. So first number is greater than second number. So like this, using if, you can design many programs. Since time is up, I will share with you the list of programs. You try one by one all the programs, and if you have any doubt, then we will discuss in our next class.